So good afternoon all children and welcome to the geography class. Yeah, today's chapter we are going to start chapter 2, physical features of India. So you already know that we have thoroughly discussed chapter 1, India's size and location. Whatever the fundamental aspects of this chapter we thoroughly discussed. Some data are also given there, like the size, like the location, longitudinal, latitudinal extent, all these, the different states, different features, climate, different regions having different climate, coastal line, area, all that we discussed thoroughly. So once again, here we will discuss more about, we will know more about the facts of India, like related to the physical features of India. Physical features of India. This is the today's chapter. This we will discuss. So first of all, starting the chapter, we will discuss what is the chapter's introduction. Today we will discuss the introduction of this chapter. Physical features. What do you mean by physical features? अगर हम क्वेश्चन पूछें कि फिजिकल फीचर्स क्या होता है, तो व्हाट विल यू रिप्लाई? दैट फिजिकली दैट यू कैन सी द थिंग्स, दैट यू कैन टच द थिंग्स, these are in can be larger or smaller size. So in this we see that India's physical features are there, that India's physical division. So these divisions, if we categorize them, these division, it is in 6 divisions that we already discussed. You see that in the northern area, this is the Himalayas, like all these are the Himalayas, like all these, this is the plains, these are the coastal areas, it is a desert here, this is the island. So in this we see that this the physical divisions, and how we know that what are the features. After that, when we come to know that what is the physical division, then later we discuss the features of all divisions separately, one by one. But one question in our mind, it should be arises in your mind, it should be asked by you, that why these different physical divisions are occurred on our earth. Why that there are some seas, there are ocean, there are plateaus, islands are there, desert and all that. These physical divisions, these are occurred in on the land, and in this way that the different landforms are evolution, through the evolution these are formed. This is the question कि क्या भगवान ने ऐसा बनाया, क्या ये अर्थ को बनाया तो उन्होंने ये डिफरेंट माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लाट्यूज है, आइलैंड है, क्या ये बाय गॉड है? This today we will discuss. That after that we see that these physical divisions are there. We also have to know कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ. फॉर्मेशन का पता चलेगा तभी हमें उनके फीचर्स का पता चलेगा कि फीचर्स क्या है. तो एज यू नो दैट कि हमने देखा कि नॉर्थ में क्या है, माउंटेन्स है, यहाँ पर क्या है, हिल्स है, या बीच में क्या है, प्लेन्स है. ये सारी चीजों का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इन सारी चीजों का आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. इसके साथ हम ये देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ सॉइल, इट इज ऑल्सो फाउंड. यू सी दैट इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इन ऑल स्फीयर इज देयर. The diversity is not particularly to the people only, the natural vegetation, flora and fauna, you see this is we can say in the world we are the richest, we have the flora and fauna, the diversity in this also. That's why it is called the biodiversity. So that's why all the regions are there, the landforms are different, that's why the regions are also there, their wildlife, flora and fauna and flora, this is also different from one region to another region. So today we will try to find the answers of all these questions. We see that different rocks are there. What is the reason? Soil's colors are also different. Some are red, yellow, black. Laterite soil is also there. Their colors are also different. So this we will today, not only through these physical divisions we will discuss,
the landform we will discuss, but we also try to find out the different rocks and their soils. And this is very important that these landform, it is formed through the during the so many geological periods. What are these geological periods? This is the geological period. You know that there's a Panagia time period was there, Gondwana period was there. Through these, we will also discuss all these periods. What are called the geological periods? जो different, मान लीजिए, just think about कि हमने कहा this is Himalayas are called the young fold mountain. On the other hand, Aravallis are called the old ranges, oldest ranges. Why? What is the reason? कि जहां हमने हिमालयस को यंग कहा, अरावलीज को ओल्ड कहा, उसका क्या कारण है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड, फॉर्मेशन ऑफ दीज लैंडफॉर्म्स आर बिकॉज ऑफ द डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स. कि हमने कहा हिमालय जो है वो 100 साल पहले बना है, हमने कहा अरावलीज जो है वो 200 साल पहले बनी है, डेजर्ट जो है 150 साल पहले बना है. तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन different geological periods are there, Panagia, Gondwana and all that. So we will also discuss today. I just giving you idea about the chapter. This is the introduction of the chapter, what we will read in this chapter. Later we will discuss, because we can say that there are some another natural agents are also there. These are natural agents who are also responsible for the formation of different landforms, like we also hear about weathering, erosion, deposition. Weathering means cutting of rocks, जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और इसी से तो सॉइल का फॉर्मेशन होता है. रॉक्स, सॉइल किससे बनी है? रॉक्स से ही तो बनी है, जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हो जाते हैं रॉक्स के. बिकॉज ऑफ दीज रीजन, वेदरिंग, इरोजन, वेदरिंग की वजह से it is a cutting of rocks. So rocks are also different, like you know, igneous, metamorphic, sedimentary rocks. Igneous, it is called the basic rocks, then sedimentary, then metamorphic. तो ये जो rocks हैं, different जो rocks हैं, इनका जो formation है वो भी अलग अलग है, और इसीलिए soil का color भी क्या है, different rocks से बनती है, इसलिए इनका soil का color भी अलग अलग है. So this we can say that can be a one reason of different landform, but there are some scientists. देखो हर चीज को explore करना होता है. It is not necessary that we should study the discoveries and new innovations in only in science. That's why it is called a social science, because here we also read about the things, not only read but practically we see the things, and through the deep study we come to the conclusion. जहां पर कंक्लूजन है वहां साइंस है, जहां कॉज इफेक्ट है, कंक्लूजन है, वो साइंस है. तो ये भी एक साइंस है. ज्योग्राफी इट इज ऑल्सो अ साइंस, कि ये चीजें क्यों है, कैसे हुई, आज हम वही फाइंड आउट करें. तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि इट कैन बी वन रीजन ऑफ, बिकॉज ऑफ द वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, दीज डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड ऑन द अर्थ. But because of the deep studies and deep discoveries, deep we can say their inventions, they also agree of the one theory is there. This is a theory of plate tectonic. ये साइंटिस्ट प्लेट टेक्टोनिक पे बिलीव करते हैं कि ये जो लैंडफॉर्म है वो इसकी वजह से. इट इज ऑल्सो सेड दैट कि जहां पर आज हिमालय देख रहे हैं, बहुत साल पहले वहां पर सी था, टेथिस सी. बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज टेक्टोनिक प्लेट्स वो सी क्या हो गया है, फोल्ड हो गया है, और आज वहां पर हिमालय है. तो ये बहुत सारी चीजें आपको सुनने में, देखने को मिलेगी. आज हम उन चीजों को प्रूव करेंगे कि क्या ऐसा सच में है. क्या ये जो लैंड फॉर्मेशन हम डिफरेंट देख रहे हैं, प्लेट्यू देख रहे हैं, आइलैंड्स देख रहे हैं, हिमालयस देख रहे हैं, माउंटेन्स देख रहे हैं, माउंटेन रेंजेस देख रहे हैं, डेजर्ट देख रहे हैं, इंडिया में इतनी वेराइटी, इतनी डाइवर्सिटी लैंडफॉर्म्स की, वो क्या है. तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लेट टेक्टोनिक. तो ये इंट्रोडक्शन था. अब प्लेट टेक्टोनिक क्या है उसको डिस्कस करते हैं. चलिए,
देखिए मोस्टली टेक्टोनिक प्लेट्स होती क्या है, जो मैंने आपको पिनेगिया पीरियड बताया ना, मैं आपको हिस्ट्री में ले जा रही हूँ इसके। उस समय क्या था, जो अर्थ थी, है ना, जो ये अर्थ थी वो वन लैंड मास था। अब हमने पूरे वर्ल्ड में 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और माइनर प्लेट्स हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना, अफ्रीका, यूरोप, ये सब, इंडिया, ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स इनकी। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती क्या है कहाँ, तो आपने अगर अर्थ का स्ट्रक्चर देखा हो, जरूर देखा होगा क्योंकि आपकी क्लास 6-7 में आपने अर्थ का जो स्ट्रक्चर देखा, उसमें क्या देखा कि सबसे पहले होता है क्रस्ट, ठीक है, फिर ये होता है मेंटल, और उसके बीच में होता है कोर, ठीक है। तो ये जो मेंटल है ना, ये क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। पता ही है आपको, यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट है और हम कोर की तरफ जाते हैं तो कोई भी चीज सॉलिड ही नहीं है, सब कुछ मेल्टेड है। माना जाता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ ऐसा टेम्परेचर रहता है इसके आसपास। तो जो मेंटल जो है ये पूरी तरह से पूरा क्या है, ये मोल्टन है, मोल्टन कंडीशन में। मोल्टन का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, चलो आप अगर आपको इस चीज को ऐसे समझना हो, इसको बहुत लाइव एग्जांपल देती हूँ। एग देखा है, सबने देखा होगा। यहां पर हम बॉइल्ड एग की बात करेंगे। अगर एग को बॉइल किया जाता है तो क्या स्ट्रक्चर आता है, उसके ऊपर जो उसकी कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, अर्थ की तरह है बिल्कुल। वो व्हाइट जो आउटर कवरिंग है वो है क्रस्ट, और अंदर वाला जो व्हाइट है वो है मेंटल, और बिल्कुल येलो जो योक जिसको बोलते हैं वो क्या है, कोर, ठीक है। अब हमें अर्थ समझ में आया, उसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब ये जो प्लेट्स हैं वो किस तरह से रहती हैं, देखो जब मेंटल है, इसमें ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करती रहती हैं, ठीक है, शेक करती हैं। ये जो प्लेट्स हैं ये इसमें मूव करती रहती हैं, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ये क्योंकि वो, देखो सीधी सी बात है, पानी है, पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है हमेशा, जो है फ्लो में रहता है, फ्लो रिसोर्सेज है ये हमारे। अगर उसमें कुछ भी डालोगे आप तो वो भी जो हल्का होगा, जैसे हमें मालूम है लकड़ी है, वुड है, या हम उस पर ऑयल डालेंगे तो वो क्या करेगा, पानी हिलेगा तो वो चीजें भी हिलेगी, ऊपर दिखेगी। सेम चीज उसको यही है, पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनको भी इसी तरह से समझे कि जो मेंटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, और ये जो प्लेट्स हैं वो यहीं पर जो है मूविंग करती रहती है। और इसी वजह से क्या हुआ कि जब ये अर्थ बना तो माना जाता था कि एक वन लैंड मास था, लेकिन धीरे धीरे बिकॉज ऑफ दीज टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी, सबसे पहले यहाँ पर यूरेशियन प्लेट जो है, यूरेशियन अलग हुई, फिर धीरे धीरे और जो प्लेट्स थी, जैसे हमने कहा इंडियन प्लेट है, अब अमेरिकन प्लेट है, ये सब अलग होते होते आज हमारे जो वर्ल्ड है उसमें आप इतनी सारी डिफरेंट कंट्रीज देख रहे हैं, और डिफरेंट क्या देख रहे हैं, फिजिकल फीचर्स, फिजिकल लैंडफॉर्म्स बात कर सकते, ठीक है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट का रीजन है, कारण हमें समझ में आया कि अर्थ जो था वो एक लैंड मास था। ये इतनी सारी आज जो डिफरेंट हम कंट्रीज, कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, कंट्रीज देख रहे हैं, है ना, वो जो रीजन रहा है वो ये टेक्टोनिक प्लेट्स का। और ये पूरे टाइम मूवमेंट रहता है, इनमें हमेशा मूवमेंट रहता है। और इट मे बी पॉसिबल कि आज आप जो फिजिकल फीचर्स देख रहे हैं, आज जो राजस्थान
हम मानते हैं कि राजस्थान जो है डेजर्ट देख रहे हैं, हो सकता है मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद यहाँ पर सी हो, जरूरी नहीं है कि डेजर्ट में रहे। उसका रीजन क्या है? मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट टेक्टोनिक। जैसे मैंने आपको बताया कि जब सी से हिमालय बन सकता है तो डेजर्ट क्यों नहीं हो सकता? सो इट कैन बी पॉसिबल। और इस चीज को आप समझते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट कि 3 टाइप्स जो है टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। 7 मेजर प्लेट्स हैं, टाइप जो होता है वो 3 है। वो 3 टाइप्स कौन सी हैं? एक है कन्वर्जेंट, सेकंड है आपके डाइवर्जेंट, और थर्ड है ट्रांसफॉर्म। अब हम इसको समझेंगे। कन्वर्जेंट से क्या होता है? कन्वर्जेंट जब प्लेट जो होती है टेक्टोनिक कन्वर्जेंट जो टाइप प्लेट है, जब ये मूव करती है तो क्या होता है? ठीक है, तो कन्वर्जेंट क्या करती है कि यहां से एक प्लेट और यहां से ये जब दोनों, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, वेट अ मिनट, यू जस्ट सी आई हैव दीज 2 बुक्स, ठीक है, प्लेट्स मान लेते हैं, इमेजिन दीज आर द प्लेट्स। कन्वर्जेंट बता रही हूं, अब ये 2 प्लेट हैं, जब दोनों आपस में इस तरह से प्लेट टकरा गई तो इसका जो मिडल जो पार्ट है ये अपलिफ्ट हो गया। यू सी, ये जैसे हमने इसको इस तरह से किया तो ये आपको आप करके भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिडल जो पार्ट है वो अपलिफ्ट हो गया। यानी हम मान के चलते हैं कि ये प्लेट और इस प्लेट के आने से क्या हुआ, एक मिडिल पार्ट अपलिफ्ट हो गया, इसे बोलते हैं कन्वर्जेंट। अब जो हिमालय बना है वो इसी कन्वर्जेंट प्लेट से ही बना है, तभी तो हमने कहा कि ये अपलिफ्ट पार्ट है। हिमालय कैसा है? ये अपलिफ्ट पार्ट है उन 2 प्लेट्स का, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कन्वर्जेंट प्लेट। और ये प्लेट क्या कहलाएगी? ये इट इज कॉल्ड द फोल्डिंग। फोल्ड हो गई है ये, मैंने अभी दिखाया ना आपको कि जब ये आपस में दोनों मिले तो बीच में क्या हुआ, ये जस्ट यूं, तो ये आपस में फोल्ड हो गए। फोल्ड होने से जो मिडल जो इसका पार्ट है वो अपलिफ्ट होकर क्या बना? हिमालय। इसलिए हमें क्या कहते हैं? फोल्डिंग। यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं हिमालय को। दिस इज द रीजन कि ये 2 प्लेट्स जो आपस में कन्वर्ज हुई वो फोल्ड हो गई, और फोल्ड होने से अपलिफ्ट हुआ वो पार्ट और माउंटेन बना। ठीक है, सेकेंड हम प्लेट की बात करते हैं डाइवर्जेंट। जस्ट रेज योर हैंड, समझ में आ रहा है? क्लास 9 चीजें समझ में आ रही है? रेज योर हैंड्स। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जेंट के बाद हम बात करते हैं डाइवर्जेंट की। डाइवर्जेंट का मतलब ही समझ में आ रहा है, वर्ड से ही समझ आ रहा है। मान लीजिए ये 2 प्लेट्स जो हैं ये अब डाइवर्ज हो गई, ये साथ में है, लेकिन ये क्या है, जब अपना रास्ता अलग अलग कर लेती है, मूवमेंट तो कहीं भी हो सकता है, कन्वर्ज भी हो सकते हैं, डाइवर्ज भी हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी हो सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट को स्लाइड करने की कोशिश करती है तो वो ट्रांसफॉर्म होता है। तो जब डाइवर्जेंट कंडीशन आती है कि ये प्लेट यहां चली गई, ये प्लेट यहां चली गई, तो उस समय क्या होगा, मान लीजिए ये इस तरह से, ठीक है, तो ये जो प्लेट है ये बीच में क्या होगा, ये 2 प्लेट्स हैं, ये अलग अलग रास्ते में चली गई। अब मान लीजिए ये अर्थ है, ये भी अर्थ है, तो बीच में क्या होगा, ये अलग अलग हो गई तो बीच में एक वैली बन जाती है, जो रिफ्ट वैली होती है ना बच्चों, है ना, वो इसी वजह से होती है। वो रिफ्ट वैली जो बनती है, ये जो आपस में बजाय इसके कि कन्वर्ट डाइवर्स हो जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं, तो बीच का जो ये पार्ट है ना, ये वाला जो बीच का पार्ट है, यहाँ पर क्या बनती है, वैलीज बनती है। और आपको मालूम है इन वैलीज में क्या होता है, वाटर, है ना, जो माउंटेन्स के थ्रू पानी आता है इन वैलीज से होता हुआ जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलीज भी होती है, आपको मालूम है, वी शेप वैली, यू शेप वैली, रिफ्ट वैली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलीज आर ऑल्सो देयर।
तो यहाँ पर वो वाटर होता है, जो ये डाइवर्जेंट है वो इसकी वजह से। अब क्वेश्चन ये आता है कि मोल्टन क्या है, इसमें हर चीज पिघली हुई है, मगमा में सब कुछ पिघला हुआ है। उसका रीजन क्या है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो वो जो करंट आ रही है ना, यहाँ से जो ये करंट आ रही है ऊपर की तरफ, उसकी वजह से दोनों डाइवर्जेंट हो रही है, और जो बीच के जो शेप बन रही है वो क्या बन रही है, रिफ्ट वैली बन रही है। ठीक है, जो करंट लगातार मगमा में से आ रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक है, जब ये दूर जा रही है तो जो सिचुएशन आती है बीच में वो क्या है, एक वैली बनाती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, है ना। इस कंडीशन में फ्लोट, इसको क्या बोलते हैं, फॉल्टिंग, है ना। फोल्डिंग, फॉल्टिंग मैंने समझा ना। जब ये फॉल्ट आ जाता है, फोल्ड नहीं, ये फॉल्ट आ गया, यानी अर्थ के अंदर एक फॉल्ट आ गया, तो वो जो फॉल्टिंग है उससे बनती है रिफ्ट वैली, और वो रीजन है डाइवर्जेंट प्लेट। क्लियर। अब हम बात करते हैं थर्ड प्लेट की, वो है ट्रांसफॉर्म। देखो ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ज्यादातर जो अर्थ के ऊपर अर्थक्वेक देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है, और आपको डिफरेंट टाइप के कुछ बच्चों ने हाथ ऊपर किया हुआ है, व्हाट इज द रीजन? यस देव, कोई क्वेश्चन पूछना है, या सुनाई नहीं दे रहा या दिखाई नहीं दे रहा है, व्हाट इज द रीजन? प्रियंका, मिलिंद, ओके लेट्स कंटिन्यू। तो अब ट्रांसफॉर्म को हम समझेंगे, ट्रांसफॉर्म में क्या होता है। देखिए ये एक प्लेट है, मान लीजिए एक इंडियन प्लेट है, यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पर एक यूरेशियन प्लेट है, और यहाँ पर एक इंडियन प्लेट है। अब आपको पता है मगमा मोल्टन है, तो कोई भी टाइप की ये जिस टाइप का मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। उस मूवमेंट को हम अगर ट्रांसफॉर्म प्लेट के अकॉर्डिंग समझें, तो इसमें क्या होता है कि ये प्लेट और ये प्लेट एक दूसरे को स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को स्लाइड करने की कोशिश में क्या होता है कि उनका जो स्पेस है ना, दोनों एक दूसरे के, इस तरह की सिचुएशन आ गई, मान लीजिए इस तरह से हो गया, तब क्या होगा, उस समय अर्थ के ऊपर शेकिंग होती है। और शेकिंग कहाँ होती है, अगर आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, जो अर्थ का सबसे वीक पॉइंट है वहीं पर अर्थक्वेक और वल्केनो इरप्शंस होते हैं। हमें मालूम है कि जहां वीक पॉइंट है, ठीक है, वहीं से क्या होगा, जो अर्थ की हीट है वो ऊपर की तरफ प्रेशर करेगी अर्थ को, अर्थ के मटेरियल को, और होगा क्या, एट लास्ट जो है हमें वोल्केनो दिखेगा। और जहां पर अर्थ के सबसे वीक पॉइंट होगा वहां पर अर्थक्वेक भी आएगा। तो जब ये प्लेट्स एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करती है, एक दूसरे को स्लाइड करने की कोशिश करती है, उसकी वजह से क्या होता है, कोलाइजन होता है, कोलाइड, क्रम्बल, ठीक है, शेकिंग, मूवमेंट। उस सिचुएशन में और ज्यादा जिसको कहा जाए कि नुकसान होता है, डिवास्टेटिंग होता है। आपने नेपाल का अर्थक्वेक पढ़ा होगा, है ना, सुना होगा कितना डिवास्टेटिंग रहा। तो ये जो तीनों जो प्लेट्स हैं, जो हमने 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्स के बारे में हमने पढ़ा, वो प्लेट्स जो हैं हमारे जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं, दीज आर द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। This is the reason you see that different landforms are formed due to these plate tectonic theory. और ये प्लेट टेक्टोनिक थियोरी जो है
मिलियंस ऑफ इयर्स पुरानी थियोरी है और साइंटिस्ट ने इसको प्रूव करके बताया है कि किस तरह से ये चीज हुई है, सबने इसको एग्री किया है, इसीलिए आज हम इसको पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। अब बात आती है कि ये डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है। ठीक है, अब इन डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के साथ हम डिफरेंट कुछ फीचर्स की बात करते हैं। हमने बोला था ना फिजिकल फीचर्स, उसकी बात करेंगे हम। ये जो बात हुई, हमने जो टेक्टोनिक प्लेट्स की बात हुई वो है इवोल्यूशन। इसे क्या कहते हैं? इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म। ये लैंडफॉर्म कैसे बना वो हमने देखा। अब हमको इसके फीचर्स समझने हैं। ठीक है, फीचर्स कैसे कि जैसे हमने कहा कि ज्यादातर एक चीज और समझनी जरूरी है, ज्यादातर जो आप अर्थक्वेक और वल्कानोस देखेंगे ना, वो मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट, एक चीज और आपको समझा रही हूं, ये जो बाउंड्री है, दो प्लेट्स की जो बाउंड्री होती है, वहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक, ये वीक पॉइंट होता है, क्योंकि बाउंड्री जो होती है ना, आप भी समझ सकते हैं, किसी की भी चीज की जो बाउंड्री होती है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो जहां पर वो चीज, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ से इस पेन है, ये पेन है, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा वीक पॉइंट क्या होगा कि हमने कहा कि इसकी जो शेप बाउंड्री, जहां पर इसका कहीं जॉइंट आता है, जहां पर भी इसका जॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा? वीक पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मार्जिन जहां पर इन दोनों की बाउंड्री है, वहीं पर अर्थक्वेक और इरप्शन सबसे ज्यादा होंगे। कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने अफ्रीका की बात करी, जैसे समझ लीजिए साउथ अफ्रीका, कई बार विद इन द कॉन्टिनेंट भी ऐसी चीज हो जाती है, जरूरी नहीं कि बाउंड्री में हो, कई बार माइनर, क्योंकि हमने क्या पढ़ी है, मेजर प्लेट्स के साथ साथ हमने माइनर प्लेट्स भी पढ़ी है, तो मेजर प्लेट्स का तो रीजन हमें समझ में आ, लेकिन जो माइनर प्लेट्स होती हैं वो भी रीजन बन जाती हैं इन वोल्केनो इरप्शंस का और अर्थक्वेक का, तो वो विद इन द कंट्री यानी विद इन द लैंडफॉर्म जो है वहां पर भी ये चीजें देखने को मिल जाती है, ये भी एक फैक्ट है। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिया के फिजिकल डिवीजन की। अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो 6 फिजिकल डिवीजन में डिवाइडेड है। क्लियर? पहले हम लैंडफॉर्म की बात कर लेते हैं। एज वी नो कि ये जो पार्ट है हमारा, है ना, ये वाला जितना पार्ट है, ये पूरा का पूरा क्या है? हिमालय या माउंटेन्स बोल सकते हैं आप। ठीक है, पहले हम इसको समझेंगे, फिर हम बात करते हैं प्लेन्स की। ये आपके प्लेन्स हैं जो कि आसाम तक हैं, फिर आपका डेजर्ट है ये, ठीक है, फिर ये आपका कोस्टल एरियाज है, ये आपका एक ट्रायंगल शेप बन रहा है प्लाटियो का, देख लीजिए बिल्कुल ट्रायंगल शेप बनता है। ठीक है, ये आपके आइलैंड्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, गुजरात जो है यहाँ पर आपको कोस्टल भी दिखेगा इसका, प्लस कुछ पार्ट इसका डेजर्ट भी दिखेगा और प्लेन्स भी है। तो इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट फिजिकल डिविजन्स आर देयर इन इंडिया and they have their different, these are the different landforms, according to that their different features are also there. So I just want to ask कि आज जितना फीचर्स, एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, हमने जितना आज डिस्कस किया सबको समझ में आया? तो आगे हम बढ़ते हैं। रेज योर हैंड्स।
थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक क्लियर हुई सबको? बट वन मोर थिंग इज देयर, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस चैप्टर, यू गो थ्रू द चैप्टर एंड कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि और क्लियर करने के लिए आप सेल्फ भी पढ़ें उस चीज को, ठीक है? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए अब हम बात करते हैं उसके फीचर्स की। माउंटेन्स, हिमालयास, लॉफ्टी हिमालयास। आपको मालूम है कि इंडिया में जो हिमालय है ये ट्रांस हिमालय है। कैसे? हमें मालूम है कि यहां पर है तिब्बत और ये ज्यादातर जो हिमालय है वो तिब्बत में है और इंडिया में उसके बाद कुछ पार्ट इंडिया में, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। इंडिया में क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय, ठीक है? अब हम हिमालय की जो 3 रेंजेस हैं वो 3 रेंजेस की बात करेंगे, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, ठीक है? अब मैं एक बार इसको रब कर रही हूं ताकि मैं एक एक चीज आपको बताऊं कि कैसे क्या है। बस यहां पर हम बात करेंगे कि जो ट्रांस हिमालय की बात की हमने, कहा तिब्बत, और ये हिमालय जो है वो इंडिया में इस तरह से यूं, ठीक है? अब हमने 3 इसकी जो मेजर रेंजेस हैं, ठीक है, इसके जो 3 पार्ट्स हैं हिमालय के, यूं कहते हैं, वो है आपके हिमाद्री, हिमाचल और थर्ड है शिवालिक। उससे पहले मैं आपको कुछ रेंज बताना चाहती हूँ इसकी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैप पे आएंगी आपके। यहां पर सबसे ऊपर जो रेंज, सबसे टॉप पे जो रेंज है वो है काराकोरम रेंज, ठीक है? दूसरे नंबर पे जो आती है वो है आपकी लद्दाख रेंज, यहीं पर K2 है आपके, गुडविन आस्टिन। और थर्ड नंबर पे जो आपकी आती है वो है ज़ेस्कर। इन 3 रेंजेस के बाद हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक स्टार्ट होता है, ठीक है? अब हम उसकी बात करते हैं। आप हिमाद्री, हिमाचल, ये इनके जस्ट यहीं से स्टार्ट होती है। ये हिमाद्री चल रही है, यहाँ पर अपना एक पड़ोसी देश है नेपाल, वहां पर भी है, फिर हमारे सिक्किम, भूटान, वहां पर भी है, फिर ये हमारे एपी, अरुणाचल प्रदेश, और इस तरह से नीचे जाते हैं। तो सबसे हमारी जो नॉर्दर्न मोस्ट अगर रेंज पूछे तो वह है हिमाद्री। अब हिमाद्री को अगर हम जितना डिटेल, एक आपको आज सुपरफिशियल तीनों का आइडिया देती हूँ, फिर हम उसकी डिटेल करेंगे कल। हिमाद्री के बाद जो है इसके बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, यहाँ पर मोस्टली आपको जो है बर्फ मिलेगी हिमाद्री में, क्योंकि इसका हिम आद्री यानी हिमाद्री जहां पर सबसे ज्यादा बर्फ है, तो हम लोगों के लिए वहां पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। जो एडवेंचरस हैं वो लोग तो यहाँ तक भी जाते हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें और भी हम जानेंगे। इसके जस्ट नीचे जो रेंज शुरू होती है वो है, ये भी इसी तरह से पूरी जाती है, हिमाचल। आपको पता है जितने भी हिल स्टेशंस हैं वो सब यहीं पर ही हैं। हम लोग घूमने जहाँ जाते हैं, कांगड़ा वैली है ना, और नैनीताल है, वो सब यहीं पर। तो मोस्टली सारे हिल स्टेशन यही हैं, और इसी के नीचे सबसे साउथ में जो हिल वो है शिवालिक। यहाँ दून्स है, देहरादून है ना, ये सारे दून्स यहाँ है।
तो ये जो 3 रेंजेस हैं, अब यहाँ पर क्या है ये तो हमारे हिमालय की क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हाईएस्ट जो ये पूर्वांचल है, पूर्वांचल। इसको पूर्वांचल क्यों कहा है? क्योंकि ये जो रेंजेस है हिमालय की वो ईस्ट में जा रही है। ये कौन सा पार्ट कहलाता है हमारा? नॉर्थ ईस्ट। पूर्व की ओर पूर्वांचल, यानी पूर्व की ओर जिसका आंचल है वो है पूर्वांचल। पूर्व की ओर आंचल किसका है? इसका। किसका? ये रेंजेस का। तो ये जो रेंजेस हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंट हिल्स यहाँ पर है, आपको हम बताएंगे कौन कौन सी है। मिशिमी है, डाफला है, नागा हिल्स है, ठीक है, मीजो हिल्स है, गारो खासी जयंत हिल्स है, वो सारी हिल्स बताएंगे आपको। तो ये जो एक हमारा एक सुपरफिशियल आइडिया हो गया कि हमारे जो नॉर्थ में है वो डिफरेंट कौन सी हिमाचल, हिमाद्री, इनको बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा आपको। भाबर क्या है, तराई क्या है, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन में अभी आपको बता रही हूँ इसका भी कि किस तरह से क्या चीजें। फिर हम बात करेंगे हमारे राजस्थान डेजर्ट की, कि यहाँ पर आपको ज़ीरोफाइट्स जो है वेजिटेशन मिलेगा, स्कैरसिटी ऑफ वाटर मिलेगा, पानी जो है बारिश की जो है कमी देखने को मिलेगी आपको, ये सारी चीजें, ठीक है। प्लस यहाँ का वेजिटेशन क्या है उस पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी आपको सैंड ड्यून फ्री, यहाँ पर राजस्थान के अंदर आपको एक एरिया ऐसा मिलेगा जहाँ सैंड ड्यून फ्री है वो एरिया। अगर ग्रेट